Welcome people, this is UPSC Connect. So the lesson is on anti-defection law under the course of other bodies and dimensions. So first of all, let us see an overview for this anti-defection law topic. 52nd Amendment Act of 1985 ने disqualification of the members of parliament as well as state legislatures के लिए कुछ framework provide किया था on the ground of defection from one political party to another. मतलब एक political party से दूसरे पार्टी में जंप करने के टाइम में disqualification होगा. And for this purpose, it made changes in 4 articles of the Constitution. और एक schedule भी add किया गया. That is the 10th schedule. And often this act is referred as the anti-defection law. Later on, the 91st Amendment Act of 2003. It made changes in the provision of the 10th schedule. पहले एक exception था इस act के अंदर कि disqualification नहीं होगा if there is a split in the party. So this 91st Amendment Act, it basically omitted that exception. So disqualification on the ground of defection will now apply even in the case of split among the party. We can basically divide the provisions of this act into 4 parts. First is disqualification, second is exceptions, third is the deciding authority, and fourth and last is the rule making power. So firstly, let us see the disqualification provisions which are mentioned in the 10th schedule. एक हाउस के मेंबर जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, he or she becomes disqualified for being the member of house if अगर उसने voluntarily अपने membership को छोड़ दिया हो, if he or she gives up his membership voluntarily of such political party, या फिर if he votes या फिर वोटिंग से abstain करे in such house and contrary to the directions which are prescribed by his political party without obtaining any kind of prior permissions from that respective party, and such act has not been condoned by the party within 15 days. मतलब अगर पार्टी के वोट उस हाउस में वोटिंग जब हो रहा हो, अगर वोटिंग करने से अब्सटेन कर ले या फिर वोट करे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दैट रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी और इसके लिए कोई प्रायर परमिशन ना ले, एंड ऐसा कोई भी एक्ट इट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी 15 दिन के अंडर, इन दैट सिचुएशन he or she becomes disqualified for being the member of that house. और इस प्रोविजन के थ्रू ये क्लियर हो जाता है कि मेंबर अगर पार्टी टिकट से इलेक्ट हुआ हो, then he or she should continue in the party and obey the party directions. That was all about the case when the candidate is from a political party. Now let us see independent members case. अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर हाउस का इलेक्ट हुआ हो विदाउट बीइंग सेट अप एज अ कैंडिडेट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो डिस्क्वालीफाई होगा इफ ही और शी जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच काइंड ऑफ इलेक्शंस. इन द केस ऑफ अ नॉमिनेटेड मेंबर हु इज मेंबर ऑफ द हाउस, he or she becomes disqualified for being the member of that respective house agar if he or she joins any political party after the expiry of 6 months from the date on which he takes his seat in the house. मतलब अगर वो political party join करता है within that said 6 months, then he or she will not invite disqualification. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर 6 महीने के अंदर उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है तो. नाउ लेट अस सी द एक्सेप्शन प्रोविजंस. जो अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इट डजंट अप्लाई इन 2 केसेस. अगर मेंबर गोज आउट ऑफ पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विथ अनदर पार्टी, और ये जो मर्जर है it take place when 2/3 of the members of the party have agreed for such merger. और अगर member after being elected as a presiding officer of the house
वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, या फिर रिज्वाइन कर ली अपनी जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है वो खत्म होने के बाद, तो उसके केस में इन दोनों केस में ये डिफेक्शन के रूल नहीं लगेगा ऑन दैट मेंबर. दिस एक्सेम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द व्यू ऑफ डिग्निटी एंड पार्शियलिटी ऑफ दैट ऑफिस, ताकि अगर कोई मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है उस हाउस का, तो he or she should be partial and so as to maintain that dignity of that office, ये एक्सेप्शन रखा गया है. जैसे पहले कहा था कि 10th शेड्यूल में पहले एक एक्सेप्शन था जो बाद में हटाया गया है. दैट वाज exemption when there is a split among the party by 1/3 members of the legislature party, और ये डिलीट हुआ था by 91st Amendment Act of 2003. इसका मतलब ये है कि जो डिफेक्टर्स हैं who got split from the party, they don't have any kind of protection on the basis of splits. So now let us see basically the deciding authority provisions. जो डिफेक्शन हो रहा होगा उसका जो अल्टीमेट डिसीजन है, it lies with the presiding officer of that house. So कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग disqualification which arises out of defection, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा. ओरिजिनली ये जो एक्ट था जो डिसीजन लेने का, इट इज फाइनल बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में. बट इन द क्विहोतो होलोहान केस इन 1993 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो प्रोविजन है इट इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू हटाता है फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. इट ऑल्सो सेज दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज जस्ट लाइक अ ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन करता है अंडर 10th शेड्यूल. सो इसका मतलब है कि उसका कोई भी डिसीजन होगा, इट इज जस्ट लाइक एनी ट्रिब्यूनल एंड इट विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलिफाइड, मतलब बैड फेथ, गलत इंटेंशन से अगर कोई ग्राउंड में लिया हो तो इट विल बी टेकन अंडर जुडिशियल रिव्यू. या फिर परवर्सिटी, मतलब ठीक प्रोसीजर से ना किया हो या फिर गलत इंटेंशन हो, इन सारे प्रोसीजर्स के इन सारी सिचुएशन के केस में जुडिशियल रिव्यू कैन बी टेकन. और उसने ये रिजेक्ट किया था कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पावर टू से एनीथिंग अबाउट द डिफेक्शन इज फाइनल. उसने ये रिजेक्ट किया था क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ही और शी मे हैव अ पॉलिटिकल बायस. सो उस सिचुएशन में दैट पावर शुड नॉट बी फाइनल. So now let us see the rule making power provisions. The presiding officer of the house, उसके पास ये पावर होगा so as to make rules, ताकि वो 10th शेड्यूल में जितने भी प्रोविजंस हैं उनको वो इफेक्ट में लेके आए. एंड ये जितने भी सारे रूल्स हैं ये हाउस के सामने प्रेजेंट करना चाहिए बिफोर 30 days. एंड हाउस उसको अप्रूव या मॉडिफाई या फिर डिसअप्रूव कर सकता है. और ये बोलेगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही और शी कैन से और डायरेक्ट कि अगर कोई भी मेंबर उसके अगेंस्ट, इस रूल्स के अगेंस्ट अगर जाएगा, देन ही और शी मे बी डेल्ट विद इन द सेम मैनर एज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस. और इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ही कैन टेक अप द डिफेक्शन ओनली व्हेन ही रिसीव्स अ कंप्लेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस. और फाइनल डिसीजन लेने से पहले मेंबर को जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिया गया है, ही और शी शुड बी गिवन अ चांस टू सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन. और वो पर्सन, कंसर्न पर्सन, वो कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को मैटर दे सकता है फॉर इंक्वायरी, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के अंडर है. सो इसकी वजह से ये पता चलता है कि डिफेक्शन हैज नो इमीडिएट या फिर कोई ऑटोमेटिक इफेक्ट उसका नहीं है एकदम से. सो नाउ लेट अस इवैल्यूएट दिस एक्ट. 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के वो इसलिए डिजाइन हुआ था ताकि कोई भी तरीके से जो इविल है या फिर मिसचीफ है पॉलिटिकल डिफेक्शंस में, जो मोटिवेट हुआ हो ऑफिस के अट्रैक्शन के लिए, पावर के लिए या फिर कोई मटेरियल बेनिफिट के लिए, मतलब रुपए के लिए, उस मोटिवेशन को प्रिवेंट करने के लिए 10th शेड्यूल क्रिएट हुआ था.
and is also created so as to strengthen the Indian parliamentary democracy by removing the unethical political defections या फिर unprincipled political defections. उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने ये कहा था कि इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप द पब्लिक लाइफ. और उस टाइम के जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि 52nd अमेंडमेंट बिल का जो पास होना था बाय अ यूनानिमस वोट, मतलब दोनों हाउस ने, दो पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने यूनानिमसली इसको पास किया था. दैट वाज अ प्रूफ कि इंडियन डेमोक्रेसी का वो मैच्योर हो रही है और स्टेबल हो रही है. सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस एंटी डिफेक्शन लॉ. ये पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये चेक करता है कि अगर कोई पॉलिटिकल मेंबर if he or she jumps from the same political party to any other party, then he or she may invite the defection through this anti-defection law. और merger के केस में defection law नहीं लगता, so it will lead to democratic realignment of parties in the legislature. करप्शन को ये reduce करता है at political level, क्योंकि अगर कोई भी मोटिव, अगर उसका नॉन मटेरियल मोटिव हो या फिर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो इन द टाइम ऑफ इलेक्शंस, तो उसके केस में अगर मेंबर हाउस को पता चले कि अगर ऐसा कुछ जंपिंग हुआ हो बाय मेंबर फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन, तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट होगा और उस पॉलिटिकल मेंबर पे लगेगा एंड ही और शी विल बी रिमूव्ड. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जिस्टेंस का. अपार्ट फ्रॉम द सेड एडवांटेजेस, कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर मिसिंग पॉइंट्स हैं जो इसको फेल करता है सो एज टू प्रिवेंट द कंप्लीट डिफेक्शंस. सबसे पहले कि ये डिसेंट और डिफेक्शन में डिफरेंशिएट प्रॉपरली नहीं करता. लेजिस्लेचर के पास जो राइट होते हैं विच आर कि वो डिसेंट कर सकता है या फिर ही और शी में एंजॉय द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, तो वो लेजिस्लेचर के राइट को ये प्रोवाइड नहीं करता. मतलब ये क्लियरली पार्टी सिस्टम के बॉसिज्म को ये शो करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, उसको एक पेडिस्टल लेवल पे रख देता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है. और इससे क्या होगी कि पार्टी सिस्टम में टायरेनी होगी, बॉसिज्म या होगी या फिर उनकी ही डोमिनेंस चलेगी इन द नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन. इंडिविजुअल डिफेक्शन या फिर ग्रुप डिफेक्शन में ये जो डिस्टिंक्शन करता है वो कंप्लीटली इरेशनल है, क्योंकि इट अलाउज ग्रुप डिफेक्शन इन द केस ऑफ अ मर्जर, बट इंडिविजुअल डिफेक्शन के केस में ये अलाउ नहीं करता. दैट मीन्स कि रिटेल डिफेक्शन को ये बैन तो करता है, बट ऑन अ होलसेल लेवल जो डिफेक्शन होगा इट लीगलाइजेस दैट डिफेक्शन. एंड इट डज नॉट प्रोवाइड द एक्सपल्शन ऑफ लेजिस्लेचर. अगर वो पार्टी मेंबर बाहर में, लेजिस्लेचर के बाहर में कोई एक्टिविटी ऐसा करता है विच इज नॉट करेक्ट, तो उसके केस में डिफेक्शन नहीं होगा. एंड इंडिपेंडेंट मेंबर के जो डिफेक्शन होगा और नॉमिनेटेड मेंबर का जो डिफेक्शन होगा, उन दोनों के जो बीच में डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीटली इलॉजिकल है. क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट मेंबर के केस में अगर इफ ही और शी जॉइन्स अ पार्टी देन ही इज डिस्क्वालिफाइड, बट अगर नॉमिनेटेड मेंबर अगर पार्टी ज्वाइन करता है विद इन 6 months देन दैट इज अलाउड. द कंप्लीट अथॉरिटी या फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो क्रिटिसाइज हुआ है 2 ग्राउंड्स पे. सबसे पहले टेकिंग दैट पावर और गिविंग दैट अथॉरिटी टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल हैव अ पॉलिटिकल बायस. सेकेंडली उस ऑफिसर के पास लीगल नॉलेज नहीं होगा या फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा सो एज टू हैंडल दैट केस. एंड दिस हैज बीन प्रूवन इन द पास्ट. 2 स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, राबी रे 1991 में और शिवराज पाटिल 1993 में, उन्होंने खुद ही बताया था कि उनके पास
ये डिफेक्शन के रिगार्डिंग सुटेबल एक्सपीरियंस नहीं है, सो एज टू adjudicate those cases regarding to defections. So that's all for this lesson. Thank you for watching. We'll talk to you guys in the next lesson. Till then, have a nice day.